that what all things what means across the India. He realized that advanced room reservations were frequently not honored, and hotels often did not deliver even basic promises. What all promises they give are not good. Comfortable night rest was not there. Problems were there. Lack of predictability was there. Lack of reliability was there. Now over to Rishabh. Thank you so much, sir, and thank you, Alia. I will explaining the following points. Indian hotel industry. India had a booming hotel industry. In 2016, people made 7.2 billion worth of hotel booking, and 2020 were expected to grow by about 50%. The growth was driven by a rise in disposable incomes of India bargaining middle class and proliferation of low cost airlines. Most of the demand was in the budget room segment of the 4 million hotels. In India, 96% were small unbranded rooms. Next part is covered by Samarth. Samarth, Yeah, are you there? change the slide. Yeah, we can talking about customer and their problems. First point is uninformed customer. Uninformed customer are there those type of customer they have a trust issue. What hotel owners what see in pictures, just like that we can go in a hotel where we can see the photo and there are all type of resources are provided, but we can go in a room we can see there is a nothing resources are provided. So main point is this customer are not satisfied. And second is a demography of a Gurugram. It's a Gurugram is a city of southwest of New Delhi in northern India. The Kingdom of Dream is also known as the Kingdom of Dream, where the Ritesh Agrawal come and make his dream in real life, because make his dream come true, because there is a lots of national parks, temple, museum, this place for a very good city in this. And fourth point is quality of supply. There is a lack of quality in unorganized hotels, just like this. We can go and see there is a loss of lack of staff and communication. There is a not a lack of communication. So Ritesh Agrawal think and do to take a app to communication well. And fourth point is trust deficit. This is a main point which I can highlight for customers and their problems. Trust issues is that uh, customer are not very well trust on the unorganized room. We can see in many, we can read in newspaper, we can go in unorganized hotel. uh, there are some illegal works are here, so customer are getting afraid to go unorganized hotel. But Oyo rooms come and they can trust them, and they work well. He come and trust them and join us. So next slide, please. Yeah. And second thing is objective of Oyo. These are the four main objective. The Oyo are getting successful at that time. There is a big stardom. So that's these are the four main objective. Main object customer satisfaction. This is the main point. Customers are well satisfied. This is the strategy of Ritesh Agrawal. How can I satisfy the customer? So he had to make many schemes to satisfy the customer. And second thing is standardization. He can make standardization, just like he renovate the hotel from interior and exterior also, and provide all the resources what they want. And scaling up point is related to both of these point. If customer satisfy,
standardization are there, so automatic your growth and scaling up, your business is growing. And fourth point is targeting customers under low income budget. I think this is the main point I can analyze. Oyo company target those customer who was low in income. Just like there was a lots of middle class social workers are there, so they can target them. Just like I am a middle class man, I can earn 20,000 in a month, and when I go one place to another place, so I can take a night hall in one hotel. So I can spend, I think, 1,000 to 1,200. It's my, so Oyo can targeting these type of customers. So that's why at that time Oyo is a big successful by these four strategies. And now I request to Manpreet can handle the case. Thank you. Thank you, Samarth. Before coming up to the analyzing part, I'm gonna say that the conceptual part has been covered by my friends. The context part, like how was the industry, how were the customers, and what were the objectives of Oyo. Before coming to disruptive innovation, I want to say something that none of my fellow mates or classmates had covered the basics of management. What are the basics of management? We usually do that. We usually forget to cover the basics of anything. We come to know about SWOT, about those, and anything else, but we forgot about the basics of management. The basics of management. He used how beautifully he used planning, staffing, organizing, directing, and controlling as his part of a strategy, a strategic basic business unit. He used planning to create the strategy about how is the atmosphere, how is the environment there, and what I can do to cover that cost or cover that part of the strategy, like doing standardization or doing anything else. What's a part of his planning? Organizing. He organized each and every department of his organization in a well situated manner. Like he did marketing, he did promoted the app by advertisement and elsewhere. Coming to staffing, he he recruited those, as I quote on from this case study as well, that he recruited the people or the employees from top B schools or top management schools. One point I would like to mention that was very interesting from the case study is that he recruited the mothers of our environment, or we can say of our family in the corporate sector. That was a big plus point for me when I was studying the case study. Coming to directing, he used supervision, leading, motivation, directing, anything in his personal best opinion. Like he used. Coming to controlling, how when he controlled the Oyo company by appointing Oyo captains. Now, sir, coming to disruptive innovation, as you said, disruptive innovation, as it quotes, is creating a new market and value network which disrupts the already existing market. By disrupting, we mean interrupting or causing a problem for the person who already are there. Like I want to mention some. I would like to mention some of the facts that they were already budget hotels as well. Like we can see in Exhibit 5 that budget hotels are already present there. And when we come out from a railway station, we can see n number of n number of hotels there, which are in our capacity to be occupied. But disruptive innovation comes under like creating a new market. He focused on unbranded products, converting unbranded to branded. Not just using or creating branded products or branded hotels or branded inventory. He just used the unbranded hotels to convert into the branding hotels by using standardization of hotel rooms and giving the data, because data is the king, as we can say, data is the king. He gave the data of his hotels, of his rooms to the wider network, so that the customers will get informed about what is basically Oyo is doing. Next slide, please. अरे रुको तो ये डिसरप्टिव इनोवेशन बताओ ना, इस केस में क्या डिसरप्टिव इनोवेशन है?
सर डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन इस केस में यही था कि सर ऑलरेडी वहां पे ब्रांडेड बजट होटल्स थे। जैसे हम देखते हैं एग्जिबिट 5 में भी दिया है केस स्टडी के कि रेलवे स्टेशन के बाद बहुत सारे बजट होटल्स हैं, और कुछ ब्रांडेड होटल्स ने भी कोशिश करी बजट होटल्स बनाने की, लाइक फॉर्च्यून पार्क और जिंजर का मेंशन है केस स्टडी में, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल इन दैट स्ट्रेटेजी। वो अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन करने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने एक ऐसा नया मार्केट क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी। इसने डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन किया बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइजेशन। उसने कहते हैं अपना नए होटल बनाने की कोशिश नहीं करी, ना उसने कोशिश करी कि मैं बजट होटल्स को कहते हैं क्रिएट करूं। उसने अपनी इन्वेंट्री उन्हीं अंडर अनब्रांडेड होटल्स की इन्वेंट्री को यूज करके उनको ब्रांडेड किया, उनको स्टैंडर्डाइजेशन किया, उनको बेसिक एमेनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश करी। दैट वाज माय नॉलेज ऑफ डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। What is the difference between innovation and disruptive innovation? Sir, innovation can be taken as a positive or negative. Innovation can be anywhere. Like, sir, disruptive innovation is basic where the basis of where the existing market is already there. वहाँ पे existing market है और हम वहाँ के existing market को interrupt करके new market लेके आ रहे हैं। मतलब हम उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो कहते हैं कमियां हैं, उनको यूज करके अपना डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन करके उसमें न्यू मार्केट ला रहे हैं और उसमें वैल्यू ऐड करके कोशिश कर रहे हैं कि एक न्यू मार्केट क्रिएट करें फॉर आवर कस्टमर्स। And what is an innovation? एंड इनोवेशन इज सिंपली सर कि हम कुछ नया अपना सोच के नया यूनिक कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम। जो लास्ट 2 लाइन्स है ना, उसमें तुमने लिखा है डिस्प्लेसिंग एस्टैब्लिश्ड मार्केट लीडिंग फर्म्स प्रोडक्ट्स एंड अलायंसेस। तो डिस्प्लेसिंग एस्टैब्लिश्ड मार्केट लीडिंग फर्म्स इस केस में कहाँ है? डिस्प्लेसिंग एस्टैब्लिश्ड मार्केट लीडिंग फर्म्स सर मैंने आपको अभी मेंशन किया कि केस स्टडी में भी ये मेंशन है कि ताज ने कोशिश करी फॉर्च्यून पार्क बनाने की, जिंजर बनाने की फॉर इन बजट फ्रेंडली होटल्स की तरह। मतलब उनकी कोशिश ये थी कि हम बजट में प्रोवाइड करेंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी ब्रांडेड हैं और उनका स्केल वैसे भी टॉप पे है और वो ऑलरेडी कम मतलब वो यूज कर रहे हैं उनका अपना ब्रांडेड प्रोडक्ट, बट उन्होंने कोशिश करी इस मार्केट में आने की, बजट होटल्स के मार्केट में आने की। उन्होंने उस चीज को ये स्टैब्लिश मार्केट बनाने की कोशिश करी और ओयो ने क्या किया कि उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको हटा के अपना एक ऐसा इनोवेशन लेके आया जिसको डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन कह रहे हैं, कि जहां पे उसने उन बजट होटल्स को भी खत्म कर दिया। Yes, sir. So marketing strategies. As you can see, I have written TQM. Sir, I know you will question me about TQM, so I want to explain something about TQM. Sir, what I have studied from my books is TQM is total quality management. It is a management philosophy where we provide certain quality resources, providing quality to the customers for customer satisfaction. That is total quality management. Sir, I'm going to link this with the marketing strategies I'm going to explain about OYO. Sir, first is standardization experience. सर स्टैंडर्डाइज एक्सपीरियंस में सर उनके बेसिक प्रोमिसेस ये थे कि हम प्रेडिक्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को प्रोवाइड करेंगे। वी प्रोवाइड प्रेडिक्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी सो दैट वी कैन गिव मैक्सिमम क्वालिटी टू आवर कस्टमर्स। Sir, basic objective was customer satisfaction, and he used the 4 promises: affordability, availability, predictability, and reliability to gain the customer satisfaction at its maximum level by giving them quality. सर स्टैंडर्डाइजेशन एक्सपीरियंस में एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा और कोट करूंगा कि ये केस स्टडी में भी है कि सर उन्होंने डस्टबिन्स को कहते हैं अपना प्लास्टिक डस्टबिन्स को रिप्लेस करके स्टेनलेस स्टील के डस्टबिन यूज किए, क्योंकि प्लास्टिक के डस्टबिन ज्यादा अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स को कैरी करते हैं, मतलब उसमें ज्यादा धूल लगती है। दैट वाज हिज नॉलेज ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग, गिविंग अ स्टैंडर्डाइजेशन एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स। सर प्राइसिंग मॉडल में बात करूंगा। सर प्राइसिंग मॉडल 2 टाइप के मॉडल थे, सर मिनिमम गारंटी एंड उसके बाद डायनेमिक प्राइस मॉडलिंग। सर मिनिमम प्राइस मॉडलिंग में सर हाउ TQM इज सिचुएटेड टू देम। सर उसने कोशिश करी कि उसका एक ये थ्रेट भी था कि अगर मुझे कहते हैं इन्वेंट्री नहीं मिली, फॉर एग्जाम्पल मुझे होटल ओनर्स ने मना कर दिया कि मैं आपको रूम नहीं दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरा पूरा जो प्लान है वो फेल हो जाएगा।
सर वहां पे उसने अपने क्वालिटी मैनेजमेंट का यूज करके उनको एक तरीके से लॉयल्टी उनकी गेन करने की कोशिश करी कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बेसिक जो भी रेवेन्यू रहेगा रूम का, भले ही वो ऑक्यूपाइड हो चाहे ना ऑक्यूपाइड हो, वो मैं अपने लेवल पे आपको पैसे दिया करूंगा. That was his knowledge of giving getting the loyalty of the owners. So third is auditing rooms. Auditing rooms was done by creating an app called Krypton app, जहाँ पे हम color coding कर सकते हैं of rooms that are that are basic have basic amenities of OYO, that do not have basic amenities of OYO, and that those who do not comes under OYO. और सर उन्होंने ओयो कैप्टन्स को भी अपॉइंट किया जस्ट फॉर ऑडिटिंग रूम्स. सर ऑडिटिंग रूम एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है इन कंट्रोलिंग. अगर ऑडिटिंग नहीं होती तो हम भी उसी प्रॉब्लम में फंस सकते थे जैसे पहले भी बजट होटल फंस रहे थे कि जैसे वो दिखाते थे और जैसा ऑडिटिंग डज नॉट कम्स अंडर मार्केटिंग. सर yes sir, I can say that auditing doesn't comes under marketing, but I'm using auditing here in the pocket of marketing strategy. तो तुम ऑडिटिंग को मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में क्यों ले आए भाई? What made you do this? Sir, सर ऑडिटिंग रूम्स का यहाँ पे जनरल सेंस पे अगर मैं बात करूँ तो उनका ये नहीं था कि ऑडिट करना ही है. ऑडिटिंग रूम्स का बेसिक मतलब बेसिक उससे प्रोज हम ये कह सकते हैं कि जो हम स्टैंडर्डाइज एक्सपीरियंस देना चाहते थे उससे हम कितना डेविएट हो रहे हैं, बेसिकली उसके लिए यूज किया गया था ऑडिटिंग रूम्स को. मतलब that is an operation thing, that is not a marketing strategy. It does not come under marketing strategy. It is operational efficiency लाने के लिए ये सब काम करते हैं. ओके सर. प्राइसिंग इज a marketing. चलो आगे बढ़ो. यस सर. सर कोलैबोरेटिंग विद थ्री जो सबसे तीन बेसिक उन्होंने इंपॉर्टेंट समझे कि मैं इनके साथ कोलैब करता हूं. और सर ये केस स्टडी से ही कोट किया जा रहा है कि सर उन्होंने अपना एयरटेल के साथ कोलैब किया फॉर प्रोवाइडिंग फ्री वाईफाई एंड डीटीएच टू द कस्टमर्स. दैट वाज अ बेसिक पार्ट ऑफ अ बेसिक अमेनिटी. Next, he collaborated with the government to provide the staffing, or we can say to groom the staff. And third is he collaborated with the cafes for a social message that is don't drink and drive, drink and OYO. That you can drink and come to OYO and have जो कहते हैं एक आप अपने लेवल पे आराम से आप कर सकते हैं rather than coming and drinking और आप ड्राइव कर रहे हैं. वो एक सोशल मैसेज ये केस में कहीं है क्या ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग वाला? ये है सर. व्हिच पेज? सर एक सेकंड सर. चलो ठीक है टाइम लग जाएगा. लेट्स मूव ऑन. यस सर. सर उसके बाद सर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सर जैसे मैंने अभी कोट किया कि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कोलैब किया टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द स्टाफ, क्योंकि सर जब एक स्टाफ कहते हैं ग्रूम्ड नहीं होता ना तो कस्टमर को उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता और उससे ऑक्यूपेंसी रेट उनकी कम होती है. दैट इज व्हाई सर उन्होंने कहता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू किया टू द स्टाफ. सर डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि सर उन्होंने उनके डेवलपमेंट के लिए उनको भी बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना शुरू करी. जो स्टाफ था कि उनको भी एक पर्सनल रूम दिया जाए, उनको भी एक पर्सनल उनका बेड दिया जाए, उनको भी पर्सनल अपनी ब्लैंकेट या उनको बेडशीट दिया जाए कि उनका डेवलपमेंट हो. डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ कि सर उन्होंने ट्रेनिंग देके उनको अच्छे होटल्स में भी उनको ऊपर भी भेजा, प्रमोशन के बेसिस पे भी उसको डेवलप करने की कोशिश करी. और सर उसके बाद आई कैचिंग लोगो. सर आई कैचिंग लोगो और क्या चाहिए? सर ओयो रूम्स ने सबसे तगड़ी एक आई कैचिंग लोगो के लिए इस्तेमाल किया. और क्या चाहिए? जो कहते हैं हमारा वैसे भी एक इंटरेस्ट गेन कर लेता है कि यार ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमसे पूछ रहे हैं और क्या चाहिए. सर कमिंग टू द 3C मॉडल. Sir, it was given in Exhibit 8 as well that 3C model was constant availability and customer reviews. Sir, Exhibit 8 में ये दिया हुआ है कि इन तीनों चीजों में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी. डिनाइड चेक इन, मतलब जो होटल ओनर्स थे वो कहते हैं कुछ लोगों को ओयो रूम्स नहीं देते थे या मना कर देते थे कि ओयो रूम्स अवेलेबल नहीं है. दूसरा सर कंपैटिबल रूम्स.
कभी कभार सर क्या होता था कि जब कंपैटिबिलिटी नहीं मिल पाती थी एक कस्टमर को, तो वो खुश नहीं होता था, और सर उसको वो डिलाइट प्रेजेंट फील नहीं होता था, तो वो कहते हैं अपना उसको कस्टमर फीडबैक में बेकार रेटिंग देके जाता था। सर थर्ड इज कस्टमर रिव्यूज। सर इसमें सर ये था कि कस्टमर अपना रिव्यू देता था कि हमें कैसा एक्सपीरियंस महसूस हुआ। सर यहाँ पे दो चीजें कोट करना चाहूंगा कि क्रॉसिंग सिस्टम में सर जो भी कहते हैं होटल की 10 क्रॉसेस हो जाते थे उनको वार्निंग दी जाती थी, जिनके 13 हो जाते थे उनको सर मीटिंग की जाती थी, और जो 20 हो जाते थे उनको सर ओयो के नेटवर्क से ही बाहर निकाल दिया जाता था। सर इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, दैट इज एनपीएस, नेट प्रमोटर स्कोर। सर उनसे इस वजह से उनका नेट प्रमोटर स्कोर बहुत बड़ा। नेट प्रमोटर स्कोर होता है कि अगर मैं कोई भी चीज कंज्यूम कर रहा हूँ या यूज कर रहा हूँ, तो मैं उसके फायदों से आपको भी कहते हैं बताऊंगा, प्रमोट करूंगा, या उसको कहूंगा रेफर करूंगा कि आप भी यूज करके देखिए। सर उनका 42% हो गया था। दैट इज वो कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा हो गया बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग सिस्टम। सर क्रिप्टन ऐप का यूज मैंने आपको पहले बता दिया कि वो कलर कोडिंग के लिए, और ओयो कैप्टन्स को अपॉइंट किया जस्ट फॉर कंट्रोलिंग द ऑल द थिंग्स कैसे डेविएट हो रहे हैं अपने टास्क या अपने ऑब्जेक्टिव से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस सर, बिजनेस मॉडल। सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस मॉडल। सर शुरू करूंगा की पार्टनर्स से। जैसे मैंने आपको बताया कि सर इन्वेंट्री उसने अपनी खुद नहीं बनाई, उसने ये कोशिश नहीं करी। हाँ जी सर। This is not a business model. सर ये हम ऐसा प्रेजेंट करना चाहते थे। Model canvas. This is a business model canvas in which you are having the complete business model in one page. Yes sir. Yes sir. Sir key partners, hoteliers as well, मतलब उनको कहा जा सकता है कि होटल ओनर्स जिससे उसने इन्वेंट्री ली। स्टार्टिंग उसने यही किया कि यार मैं अपना होटल्स तो नहीं क्रिएट कर सकता इतने बड़े कहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में, मैं उनको टारगेट करता हूं जिनके पास ऑलरेडी होटल्स हैं और जो सिर्फ उसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब उनको उनसे इनकम नहीं हो रही, उनकी ऑक्यूपेंसी रेट भी कम है, वो जस्ट अपना एक्स्ट्रा इनकम के लिए यूज कर रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही कि यार मैंने होटल खोल लिया है और मुझे उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। सर इन्वेस्टर, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि उसने बहुत सारी कोलैबोरेशंस की विद एयरटेल एज वेल एज अदर कैफेज एज वेल। सर कस्टमर्स वो जो मेन टारगेट था वो उनका कस्टमर ही था कि कस्टमर को कैसे सेटिस्फैक्शन करना है, कस्टमर कैसे हमको प्रोवाइड करना है। और सर जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा कि कस्टमर उन्होंने उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट किया जो लो इनकम बजट में आते हैं, जिनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है या इतना इनकम पावर नहीं है कि वो बड़े ब्रांडेड होटल्स में एक स्टे करें, तो उन्होंने उनको ही टारगेट किया। सर की एक्टिविटीज एग्रीगेशन। सर एग्रीगेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि उन्होंने ग्रुपिंग करी सारे एक्टिविटीज की कि हम कंट्रोल भी कर लेंगे, हम स्टाफ को कहते हैं देख भी लेंगे कि स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स क्या हो रही है, हम कस्टमर को एक ब्रेकफास्ट कैसे ऑर्डर करना है वो भी बता देंगे कि कहते हैं वो सिर्फ एक ऐप से ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर कर सकता है और उनका ब्रेकफास्ट घर सीधा कमरे में पहुंच जाएगा। इट इज उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपनी जो ऐप बनाई, उसमें सर उन्होंने अपनी सारी जो भी रिसोर्सेज थी उनका एग्रीगेशन किया। सर की रिसोर्सेज यहाँ पे ये है, ऐप मैंने जैसे आपको बताया कि क्रिप्टन ऐप का भी यूज हुआ और ओयो ऐप का भी यूज हुआ। टेक्नोलॉजी कम्स अंडर के उसने कैसे अपना वेबसाइट क्रिएशन किया, आपने वेबसाइट से भी रूम बुक कर सकते हो, आप ऐप से भी रूम बुक कर सकते हो। स्किल्ड स्टाफ। सर स्किल्ड स्टाफ ने कैसे, मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे उसने स्किल्ड स्टाफ का स्टाफिंग करी, रिक्रूट किया फ्रॉम टॉप डी स्कूल्स जो कि एक अंडर एज ऑफ 25 के आसपास थे, ताकि उसको यूथ मिले और एक मतलब नॉलेजेबल माइंड मिले। सर ट्रैवलर्स नेटवर्क। सर यहाँ पे मैं थोड़ा कहते हैं अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहूंगा। ट्रैवलर्स नेटवर्क सर होता क्या था कि जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला कि क्वालिटी ऑफ सप्लाई। सर पहले प्रॉब्लम ना तो क्वालिटी ऑफ डिमांड की थी, ना तो क्वालिटी ऑफ सप्लाई की थी। डिमांड भी थी, लोगों को चाहिए था कि हम होटल में स्टे करें, वो होटल्स में ना स्टे करके अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के घर पे रुक जाते थे। और दूसरा सर क्वालिटी ऑफ सप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जिबिट 5 में भी दिया हुआ है कि क्वालिटी ऑफ सप्लाई में प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई नहीं थी, सप्लाई था। रेलवे स्टेशन के पास देख लीजिए आप, अदर्स आप और भी जाएंगे तो आप भी और लोकेशन में भी देखेंगे कि बजट होटल्स बहुत है। सर प्रॉब्लम थी क्वालिटी ऑफ सप्लाई के साथ। उसने सर क्वालिटी ऑफ सप्लाई देके सर उसने ट्रैवलर्स का नेटवर्क ऐसे बढ़ाया कि वो अपना, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी सिटी में जाके स्टे करूं
और मुझे होटल फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सर आज अपनी ओयो ऐप यूज करके तुरंत होटल बुक कर सकता हूँ नियर बाय माई लोकेशन जहाँ पे मुझे रुकना है। सर वैल्यू प्रपोजिशंस के मैंने शायद पॉइंट सारे कवर कर लिए हैं कि कैसे कन्वीनियंस प्रोवाइड किया, कैसे एक हैसल फ्री एनवायरनमेंट किया। स्किल्ड स्टाफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो और मुझे, यस व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय स्किल्ड स्टाफ। हाँ जी सर। सर पहले क्या था कि जब उसने मतलब ये प्रॉब्लम जब उसने देखी कि स्किल्ड स्टाफ अनस्किल्ड स्टाफ है, मतलब जो भी होटल ओनर्स के साथ जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कहते हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे खाना बना रहे हैं या किसी ठीक है, ओके है सर, ओके सर। आगे कस्टमर रिलेशनशिप्स हो गया, पर्सनल वैल्यू प्रपोजिशन सर मैंने शायद सारे कवर कर लिए हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं ज्यादा उन पे मतलब अपना टाइम नहीं दूंगा। सर चैनल्स में भी मैंने एप्लीकेशन, वेबसाइट और सोशल मीडिया को भी कवर कर लिया है अपने ऑलरेडी जो भी मैंने बताया। कस्टमर सेगमेंट्स में सर बजट ट्रैवलर्स मैंने आपको बताया कि लो बजट और जो इनकम नॉर्मल इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनको टारगेट करना। यंग प्रोफेशनल्स बाय रिक्रूटिंग दोज पीपल अंडर एज ऑफ 25 जिनको उन्होंने अपना यूज किया स्टाफ स्किल्स के यूज में। सर अकोमोडेशन प्रोवाइडर्स यहाँ पे सर ऐसा था कि होटल ओनर्स जो अकोमोडेट प्रोवाइड कर रहे हैं पर वो उनको क्वालिटी ऑफ सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, उसको उन्होंने कहते हैं चेंज करके एक अपने कह सकते हैं स्ट्रेंथ की तरह यूज किया। सर नीचे रेवेन्यू स्ट्रीम दिया हुआ है। ठीक है मनदीप, हाँ जी इट्स ओके, मुझे जरा रेवेन्यू स्ट्रीम समझा देना, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हु मेड दिस स्लाइड। सर दिस स्लाइड हमने ये स्लाइड बनाई नहीं है, मतलब ये जो भी कहते हैं ये पिंक ब्लू येलो कलर का आपको दिख रहा है सर, ये हमने एक जो भी आपने बोला अभी कैनवास है वो हमने डाउनलोड किया था, जो पॉइंट्स हमने डाले हैं वो हमने अपनी तरफ से डाले हैं। ओके गुड, चलो रेवेन्यू बता दे मुझे। हाँ सर रेवेन्यू सर जब हम कोई भी एक भी किसी की भी चीज में ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं, तो सर उसने ब्रिज बनाने की कोशिश की थ्रू द मतलब वो जहां से कस्टमर्स आ रहे हैं, जो होटल ओनर्स हैं, इट वाज अ सॉल्यूशन जस्ट अ मिनट, ये कमीशंस फ्रॉम गेस्ट्स ऑन बुकिंग वेयर इट इज देयर इन द केस, इसमें है फ्रॉम गेस्ट, मैं अगर बुक कर रहा हूं तो मुझसे पैसा ले रहा है। सर होता क्या है कि जब हम अपना जब कोई भी शादी रखते हैं, कोई भी इवेंट रखते हैं, तो सर बहुत सारे उसमें सर एग्जांपल में दिया हुआ है उसने कि जब भी कहते हैं ओयो रूम्स को 3 बेसिक चीजों के लिए यूज किया जा रहा था कि अगर मेरा कोई घर रेनोवेट हो रहा है तो मैं ओयो में रुक जाऊं क्योंकि मुझे इतने फ्रेंडली बजट में मिल रहा है, या तो कहीं पे मेरी शादी है जो कि दूसरी डेस्टिनेशन है तो सर मैं वहां पे भी रुक सकता हूँ, मतलब अपने जो भी मेरे बाराती आ रहे हैं मैं उनको ओयो में रुकवा दूं। तो सर क्या होता है कि सर इनका एक तरीके से जो होटल ओनर्स क्या करते थे कि एक अपना एक प्लेटफॉर्म एक जनरेट कर लेते थे कि यार मैं तुझे वो दे दूंगा, बेसिक कमीशन दे दूंगा, तो तू मेरे उसमें होटल में उनको बुकिंग करवा देना। सर एट द एंड ऑफ द डे ये कमीशन जो जा रहा था वो डायरेक्टली कहते हैं मतलब एक कह सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड से जा रहा था ओयो के पास, मतलब वो ले ओनर्स से रहे थे और जो भी कहते हैं वेबसाइट से भी जो भी वो हो रही थी अपना बुकिंग्स हो रही थी वहां पे भी वो कमीशन ले रहे थे। सर ये पॉइंट जो मैंने डाला था वो ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कमीशन के लिए डाला था कि कैसे वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कमीशन में भी कमा रहे थे। इट इज नॉट देयर इन द वैसे इट इज नॉट देयर इन द केस। ये सर बट जो एग्जांपल उसमें जो दिए थे ना सर कि कहते हैं मतलब रेनोवेशन के लिए अगर मुझे रुकना है या कहते हैं मतलब अगर मुझे कहीं शादी हो रही है तो मैं पहले से ही वो ओयो प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसे रूम्स के हम शादियों के लिए रुक सकते हैं, तो सर जहां से वो जो मेरा समझना था तो मैंने उसको वैसे रिलेट करने की कोशिश करी सर। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। सर लास्ट इज टोज। सर पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैंने सॉर्ट यूज क्यों नहीं किया और टोज क्यों यूज किया। सर सॉर्ट में सर जो भी चीजें होती हैं स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, जो इंपॉर्टेंट 2 पहले कंपोनेंट्स हैं वो है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, जो कि आते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में कि कंपनी के वैल्यू प्रपोजिशंस क्या, कंपनी का वैल्यू चेन कैसा है, कंपनी का कल्चर कैसा है, और दूसरा जो है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दैट कम्स अंडर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं हमारे माइक्रो एंड मैक्रो, जो कि हम आगे उस पर मैं डिस्कशन नहीं करना चाह रहा कि कस्टमर्स जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो पब्लिक है, जो कि इन्वायरमेंट पब्लिक सोशल इन्वायरमेंट है वो उसका पार्ट है।
तो सर मैंने टोज इसलिए यूज किया क्योंकि सर जब हम एक नया कुछ भी लाते हैं, इनोवेशन लाते हैं, तो सर हम या तो दो काम करते हैं, या तो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से कहते हैं अपॉर्चुनिटीज बनाएं, या जो कहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है, उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे काम करें। फॉर एग्जाम्पल सर शॉर्ट में हम ये कर सकते हैं कि यार हमारी स्ट्रेंथ है कि स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करना, तो चलो हम एक नया होटल इंडस्ट्री में घुस जाते हैं। बट अगर उसमें मुझे पता है कि ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, या ऑलरेडी वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैं और दूसरी तरीके से भी ग्रैब कर सकता हूँ, तो सर मैं अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को वैसे तैयार करूंगा। सर टोज मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि सर टोज में 4 कंपोनेंट्स आते हैं, अपना एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और अपना कंपैरेटिव, और एक और आता है सर जो कि हम कहते हैं कि वहां पे कोई भी चीज आपको अपने हिसाब से करनी है, दैट इज वीकनेस एंड थ्रेट्स का कंपोनेंट, जहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी थ्रेट्स एग्जिस्टिंग हैं उनको अपनी वीकनेसेस को उनको देखते हुए अपनी वीकनेसेस को कम करना शुरू करें। सर मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा ओयो के जो केस है। सर उनकी स्ट्रेंथ ये थी, सर उल्टा शुरू करूंगा क्योंकि मैंने टोज की तरह यूज किया है। सर सबसे पहला थ्रेट उनके पास ये था, 2 चीजें इसमें कवर करूंगा कि सर कॉम्पिटिटर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि सर ऑलरेडी जो ब्रांडेड होटल्स हैं वो भी बजट होटलिंग में आना शुरू कर रहे थे, जैसे क्योंकि ताज ने जिंजर खोला, फॉर्चून पार्क खोला, वो ऑलरेडी आने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी है। दूसरा सर कि जो होटल कहते हैं ओनर्स थे, वो क्या करते थे कि ओयो रूम्स उनके पास अवेलेबल तो थे, पर वो उनको कम कॉस्ट में, मतलब अगर मैं 500 रुपए में ओयो का रूम मुझे मिल रहा है, मैं उनको सामने वाले को मैं 450 में अपना नॉर्मल रूम दे दूंगा। सर ये 2 चीजें बहुत बड़ी। मनदीप होल्ड ऑन, इसके बाद में कौन सा स्लाइड है? सर आगे सर फिर एवोल्यूशन का पार्ट है, जाओ उसमें। सर वो आगे मेरे फ्रेंड्स कवर करेंगे। क्यों, तुमने क्यों नहीं करोगे? सर मैं बोल तो सकता हूँ, बट सर हमने कहा कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सबको बोलने की। मैं कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी मैं दूंगा ना, वो अपॉर्चुनिटी। अब इस पे बोलो। यस सर, मॉडल 2.0 सर जब उन्होंने कवर कर लिया कि सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए, मतलब हमारी ऑक्यूपेंसी रेट अब बढ़ गई है, जहाँ पे पहले ऑक्यूपेंसी रेट बहुत कम थी, अब ऑक्यूपेंसी रेट अचानक से शूट अप हो गई है। तो उन्होंने क्या किया कि हमने अब 2.0 मॉडल लाते हैं, जिसमें उन्होंने कहते हैं 3 चीजों पे बेसिकली काम किया। सर ओयो रूम्स का उसमें मेंशन है, ओयो फ्लैगशिप्स का मेंशन है, ओयो टाउन हॉल्स का मेंशन है, और सर जो भी कहते हैं इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल रिफर्बिशमेंट्स का जो पॉइंट दिया हुआ है। सर इंटरनली तो उसने कहते हैं अपना स्टैंडर्डाइजेशन के लिए काम किया ही, एक्सटर्नली भी बहुत काम किया। सर एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल, बोलते जाओ। हाँ सर, इसके आगे वाली पॉइंट में मैं इसको बेटर कवर कर पाऊंगा आगे वाली स्लाइड में। मॉडल 2 को जरा बताओ मुझे, मॉडल 2 और अच्छी तरह से समझाओ, मुझे समझ में नहीं आया। मॉडल 2.0 जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सर अपना पॉलिसीज में उसने तीन ऐसी चीजें प्रोवाइड करनी करी। जैसे सर सबसे पहले 2 चीजों का मेंशन करना चाहूंगा, ओयो अम्ब्रेला एंड ओयो होम्स, जो उसने एक एक्सटर्नल तरीके से यूज करना शुरू करी। पहले सर ये था कि वो सिर्फ होटल्स की तरफ मेंशन करता था कि मतलब अगर किसी को रुकना है तो होटल्स में आके रुके। बट सर अगर मैं एक फॉर एग्जांपल, जैसे उसमें भी एग्जांपल दिया हुआ है कि मेरे को गोवा जाना है और मुझे लंबा स्टे करना है और मैं होटल नहीं चाहता, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ओयो होम्स में जाऊंगा। ओयो होम्स जो प्रोवाइड करेंगे एक होम कल्चर मुझे। व्हाट वाज द नीड फॉर मॉडल 2? सर मॉडल 2.0 सर जैसे मैं इसको रिलेट करूं कि मैंने आपको पास में बताया कि TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सर उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि सर हम हमेशा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमें पता है कि सर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आएंगे और हमारा जो भी मॉडल है वो बराबर फिर से कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो सर हम हमेशा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए सर ये मॉडल 2.0 आया। What was the basic difference between 1 and 2? सर 1 and 2 का बेसिक डिफरेंस, सर जैसे मैं अभी बता रहा था कि उन्होंने बेसिक डिफरेंस पहले ये एग्जिबिट देखो, एग्जिबिट देख के बताओ मुझे। 1 मिनट सर। यस चलो ठीक है, आप रुक जाओ। Who was going to come with this model? थैंक यू सर। सर हिमांशु मीना।
हिमांशु मीना। Yes, sir. अच्छा, एक बार मुझे थोड़ा आपका ये क्या बोलते हैं स्लाइड्स एक बार पूरा दिखा दो और कितना क्या है जरा। Rishabh, next slide, please. नेक्स्ट Next. फिर नहीं है, नेक्स्ट मूविंग बियॉन्ड ओयो रूम्स। So this ठीक है, was कम ओके। the previous. कम टू द सेम स्लाइड जो अभी मनप्रीत के लिए था। हाँ, सी मेरा दो क्वेश्चन है हिमांशु। Yes, डोंट sir. टेल अस अबाउट, ज्यादा अब इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। ओनली टेल व्हाट वाज द नीड ऑफ गोइंग इनटू मॉडल 2 एंड हाउ मॉडल 2 वाज डिफरेंट फ्रॉम मॉडल 1, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। So first of all, I would say before Model 2, what was the experience of the customer? So earlier, Oyo was not leasing entire property. They were leasing only some of the rooms as per the bookings. And so the facilities and the services which were offered by Oyo in the assets they were including, that was varying. मतलब सर वो different थी, हर property हर जगह सर जो customers थे उनके experience different थे। और सर Oyo was not indulged in the management and the operation part. So sir, जो in effort to curb the problems which were faced by the customers in 2016, Oyo backed by $200 million support funding of Oyo, they began to migrate all their properties into a 2.0 model, where they now had Oyo to manage entire property, amenities and service level. They also leased entire property occasionally. They also took over management and operation, and also deployed some of their staff members as managers and other staff to increase operation and guest and staff interaction. They also carried out internal external refurbishments, which usually take branded hotels to complete in 5 to 6 months. It only took 14 to 15 days to Oyo to complete this. So sir, this shows that how effective and efficient Oyo was in implementing their model 2.0. So shall I go to next slide? Yes. Rishabh. Innovation and going above and beyond. So with all the operations and technologies, there comes a risk associated, for which Oyo was well prepared. As Oyo. Himanshu, Yes, sir. what is the win-win strategy? Yes, sir. Win-win partnership. उसको मतलब what is the rest explain करो, what is win-win? Yes, sir. Oyo was not just a technological driven hospitality partner. इधर मेरे तरफ देख के कैमरा तरफ देख के बताओ what is win-win? सर win-win is a situation सर जहाँ पर जो होटलर्स हैं सर वो भी benefited हो रहे हैं सर, Oyo is also getting benefited. ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही। मैं यही बस यही कॉन्सेप्ट ही जानना चाहता था। और Yes, इसका sir, उल्टा क्या होता है? By reading the paragraph सर जो मैंने वो निकाला सर उसका जो inference, so sir I put the heading win-win partner. ठीक है, okay. You can move beyond next slide भी जा सकता है। I'm okay with this slide. I just want to test your concepts, whether your concepts are clear or not. Sir, as innovation never stops, Oyo was never stopping. After introducing the 2.0 model, they shifted to different brands for different price point, different experience, and for different people. As the Oyo Rooms comes with a tagline, "Aur kya chahiye?" As it is initially developed Oyo Rooms for the travelers who were having a limited budget for their basic and wanted to fulfill their basic needs like AC rooms with TV, free Wi-Fi, and hygienic washroom, and a complimentary breakfast. These were located in busy locales with a high footfall and were not leased and operated and managed by Oyo. Another comes a Oyo flagship with a line which I have mentioned, better price for better value. Okay, no issues. ये सबको मालूम है। इसके अतिरिक्त मतलब जो दिया हुआ है इसके अतिरिक्त कुछ can you tell me those difference between flagship and townhouse? Yeah, sir. Sir, in the flagship, sir, the townhouse model is like, sir, they have the 25% studio, 25% they like 1 minute, sir. So 25% hotel, 25% home, 25% cafe, and a 25% store. Sir, the townhouse was offering a complete home away from home and a premium segment of stays to the customer visiting there.
ओके ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। Next. So I would like to end my part here and will like to call Shubham to explain first. हाँ बुला लो जल्दी बुलाओ भाई। Next. Rishabh, Next next slide, slide. Rishabh. So, thank you, Manshu and sir. This is Shubham Yadav, and I will explain you the following points of launch of OM. And first one is largest asset management company. So OYO grew at an explosive rate, and within the 4 years after its launch, it had become India's largest real estate asset management company. OYO have around $60 billion worth of real estate partners, and through its 8,500 properties across 200 cities, it has अरे captured. शुभम, Yes, sir. ये कैमरा के तरफ देख के बोलो। Yes, sir. So, sir, through its 8,500 properties across 200 cities, OYO had captured 1.5% of India's total budget hotel market. And second is introduction of more brands. So, for the further expansion of the business, OYO introduced two more brands under its name, that is Umbrella brand and OYO Home. Under Umbrella brand, OYO offered property owners who are looking to transform underutilized properties into modern hotels. And under OYO Homes in September 2017, OYO launched OYO Homes because OYO now wanted to make available corporate spaces and homes for the customers. And under this segment, OYO found that there is a huge potential for growth as a holiday destination. Next slide, Rishabh. शुभम, Yes, sir. शुभम, Yes, in sir. which year this OYO asset management was formed? इधर मेरे तरफ देख के बोलो। Sir, in the year 2017. In the year 2017, sir. And in one line what it was actually, एक लाइन में बताओ ये किस लिए किया गया था? सर ये फर्दर एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए करा था। इसमें क्या होना था? सर इसमें मतलब जो अम्ब्रेला ब्रांड है, ये मतलब ओयो ने पार्टनरशिप करी थी ऐसे होटल्स के साथ जो अपना मतलब जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उसको वो चेंज करना चाहते थे या उसको अपग्रेड करना चाहते थे अंडर यूटिलाइज्ड है। ये ऐसा कौन सा लोग थे? सिर्फ होटल ही थे कि और भी कोई थे? सर होटल्स थे सर, ओनली होटल ओनर्स। होटल्स के साथ साथ हाउस भी थे और कॉर्पोरेट स्पेसेस भी था। सर लेकिन वो ओयो होम्स है वो सर एक वो ब्रांड है सर, वो मतलब ओयो ने अपने नेम के अंदर ओयो एसेट मैनेजमेंट जो OAM है, दैट वाज टारगेटेड, इसका प्रॉपर्टी लेना था अपार्ट फ्रॉम होटल्स, हाउसेस का भी था एंड कॉर्पोरेट स्पेसेस का भी था। पहला पन्ना में ही पहला पैराग्राफ पे दिया हुआ है। यस सर, यस सर। तो सर नेक्स्ट इज conclusion. In the end, we can conclude that introduction of OYO in the year 2013 was a great start by Ritesh Agrawal, which targets budget hotels. Initially, OYO made some changes in hotels. शुभम, मुझे सिर्फ रिकमेंडेशन बता दो, आपका ग्रुप का क्या रिकमेंडेशन है इसमें? सर इसमें रिकमेंडेशन सर मैंने दिया या मेरे टीममेट्स ने OYO और ओला का सब पार्टनरशिप का मतलब एक्सप्लेन करा है कि what would happen if OYO partners with Ola. क्या होगा बताओ? And why Ola will partner with OYO? Yes sir. If this partnership becomes possible, customer can get. Why Ola will partner with OYO? सर ओला पार्टनरशिप इसलिए करेगी ना सर क्योंकि अगर ओला सर उसको भी सर मतलब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो, वो करना प्रमोट करना है। कैसे सर कैन आई एक्सप्लेन सर? Hey, hold on. I will give you a chance, Samarth. Let Shubham explain me how Ola will gain by partnering with OYO. सर जैसा कुछ कस्टमर्स हैं, अगर उसने OYO ऐप से वो होटल्स बुक करे तो सर वो ओला जो है वो अपनी कैब्स को मतलब जो भी कस्टमर है उसका जो भी प्लेस है या उसका जो भी लोकेशन है उसको मतलब वहां से पिक करना है तो सर फिर वो सीधे उस कस्टमर को पिक करके अपने होटल डेस्टिनेशन पे ले जाएगी ऐसा। और सर अगर कस्टमर को अगर इसका वो भी करना है पेमेंट वो ट्रांजैक्शन तो सर एक ओला मनी है इसके अंडर ओला के ही, तो सर वो उससे भी कर सकता है जो सेफ और सिक्योर है। So what does OYO gets from this?
सर ओयो मतलब कस्टमर को और भी ईज ऑफ यूज एक प्रोवाइड कर सकता है कि अगर मतलब कोई दूसरी सिटी से आ रहा है तो सीधे वो मतलब ओयो ऐप से ही सब चीजें फैसिलिटीज उसके पास अवेलेबल होगी सर। Shubham, Manpreet was talking about model 1.0 and 2.0. Can you elaborate on that? यस सर। सर इन द मॉडल वो 1 तो सर ऐसा था कि उसमें कि मतलब क्या था सर, मतलब उसमें ओयो ने जो भी होटल ओनर्स थे उनसे पूरी जो एंटायर प्रॉपर्टीज है उसको वो नहीं करा था, लीज नहीं करा था, बस कुछ एक होटल रूम्स उससे वो कर लिया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कर लिया था। और सर मॉडल 2.0 में ऐसा था कि उसने एंटायर प्रॉपर्टीज वो करी थी लीज पे, और जो भी उसका डेली ऑपरेशन और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो सर होटल और ओयो एक साथ हैंडल करते थे सर। कैन यू हियर मी सर? Okay. Yeah, I got you. That's all from our side. Thank you, sir. हाँ समर्थ, you are talking about something. समर्थ आप बताओ। Sir, I'm Recommendation. talking about recommendation. If Oyo Room partnership with Ola. Sir, am I audible? You are audio. शुभम जरा अपना म्यूट कर दो। Yes, sir. If sir Oyo partnership with Ola, तो sir it profit to both companies. Sir, for example, if I book the hotel and I am a spot, sir मैं अगर एक बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, मैंने एक होटल बुक किया है, तो सर अगर ओला उसके साथ पार्टनरशिप करती है, सर मुझे पिकअप भी करेगी, ड्रॉप भी करेगी, प्लस सर इसके साथ मुझे एक डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सर इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, कस्टमर बहुत ही खुश रहेगा, एंड सर दोनों कंपनीज के लिए बहुत प्रॉफिट है। एंड सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर सर ओयो के साथ जोमेटो और स्विगी भी पार्टनरशिप करते हैं, तो सर अगर कोई किसी कस्टमर्स को नीड है कि मुझे फास्ट फूड चाहिए, तो सर वो भी हो सकता है सर। इट्स माय सर ओपिनियन। नहीं सी इट्स अ, चलो ठीक है, इट्स अ ओपिनियन है, बट Yes, हैव यू डन एनी होमवर्क ऑन दिस कि कितना धंधा कितना बढ़ेगा, ओला का क्या बढ़ेगा, इसका कितना बढ़ेगा, व्हाट इफ ओयो विल अर्न एनीथिंग और नॉट? नो सर, आई एम नॉट वेरी मच सर, मैंने इतना तो एनालाइज नहीं किया है। then this is just an opinion. यस सर। When we talk about suggestions and recommendations, it should be backed up by data. कुछ एनालिसिस होना चाहिए। When you are recommending कि ओला के साथ होना चाहिए, तो ओला, see there should be a win-win type of agreement. इसको भी फायदा, उसको भी फायदा, जोमेटो को भी फायदा, इसको भी फायदा। And we have now people have come to Sir, know next time I will Zomato order prepare. करेंगे तो it is more costly. Okay. So we need to go into those details also. We need to work upon कि इतना फायदा होगा. That's why we are recommending this. और जो चीज केस में नहीं है, Okay, sir. सॉरी, उसको कभी रिकमेंड नहीं करना चाहिए। केस में इतना बहुत कुछ चीज है कि आप रिकमेंड उसमें से ही निकाल सकते हो।